मौज 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 मौज। The point of not going to school is कि अगर 100 बच्चे स्कूल नहीं गए तो उनमें से 100 में से कितने लोग will be as successful as you? No. The point is also that 100 बच्चे जो IIT या IIM अहमदाबाद में हैं, वो 100 में से एक टॉपर होता है, शायद बहुत सारे फेलियर्स होते हैं जिनको 50 लाख का कभी पैकेज नहीं मिलता है. Still they have this accolade in their mind that IIM अहमदाबाद में जाना. Similarly, it's like the reverse. I'm also a college dropout, that too thrice. I dropped out of college 3 times, and that too being a bright student, 88 score किया था. 90 plus in physics and chemistry, maths. I was a good student. The reasons were different for me, just like her. उनके dad ने एक vision देखा. She was not at all mature. She was a kid. उसके हाथ में तो था ही. So it was like the upbringing in her situation. For me, it was I am the first ever English medium student. English medium में पढ़ने का कोई असर नहीं पड़ा मेरे English बोलने में. This English has come because of my call center jobs. जब मेरे को English आता नहीं था, but my first ever E-Tech Gandhinagar job, where I did a walk-in interview by borrowing my friend's formals, was with 7 round interviews, and वहाँ पर पूरे कंपनी के अंदर ऐसे बोर्डिंग ऐसे है जहाँ पर लिखा है you will be fined 500 rupees if you speak not in English, even in cafeterias, even if the founder or the company owner, if the floor manager catches you up in Gujarati, Hindi, anywhere in the toilet as well. Wow. That strict it was. So probably that upbringing in certain areas, whether you're a kid or a mature person or maybe like just trying to grow up, just like I was in the middle stage. So I've gone through 3 different phases. इसलिए मैं बोल रहा हूँ. तो मेरा मतलब मेरे पूरे खानदान में अभी जो मैं बोला ना इतना किसी को अभी पता नहीं चला होगा अगर मैं इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ. हिंदी में भी इतना फास्ट बोल जाऊँगा उनको पता नहीं चलेगा. My entire family doesn't know what I do right now. It's just that I'm doing good. That's it. डिजिटल प्रतीक कुछ है मतलब लोग अभी सर्च कर. That's it. That's the thing which they know. So the point, मेरे पापा ने तब जब मेरे को स्कूल में रखना था तब इंग्लिश किसी को नहीं आता था. He just asked one random client of his because वो स्क्रीन प्रिंटिंग का तब पापा बिजनेस करते थे. स्क्रीन बिजनेस कार्ड सब छपते थे वो लोग. तो वहाँ पर एक क्लाइंट था, उनको उन्होंने ऐसे पूछ लिया कि मेरा बेटा अभी स्कूल में जाने वाला है तो किस में रखूँ. वो luckily he might have found that client who was that forward. He told कि ये मेरा बेटा जो है वो गुजराती में पढ़ रहा है, तब वो उनके किड्स के साथ है और ये मेरी बेटी इंग्लिश में पढ़ी है. सी द डिफरेंस. अब वो now that's the point which I'm coming on. Now that exactly. Now वो उसके पे actually now this is the point which I'm trying to make. वो intention थी. We as humans we instantly saw that negative part. You are like neuro, you know. This is how our brain works. We saw the negative, but the positive point was the next 32 years for me. That my dad saw, luckily once again, he didn't know all these things. He luckily saw that okay fine, हम लोग तो इंग्लिश में नहीं पढ़े तो शायद इंग्लिश बोलना नहीं आता है, तो वो इंटेंशन से मेरे को इंग्लिश में डाल दिया. घर पे आके मेरी मम्मी को बोला, मम्मी बोल रही है पढ़ाएगा कौन, हमको कहाँ आता है. एंड आई एम टेलिंग यू, नर्सरी में जब रखने गए ना तो वो तब के ज़माने, आज तो मेरे को मालूम नहीं कैसा होता है इंटरव्यू, तब के ज़माने में मेरी मम्मी पापा मेरे को बोलते वो एनिमल्स बताया था जिसको पूछ रहे थे कि ये क्या है. अब घर से मेरी मम्मी ने मेरे को क्या पढ़ाया था, ऊँट. कैमल को ऊँट बोलते हैं गुजराती में, and donkey को गधेड़ो. These are the only 2 animals which I knew. गधेड़ो and this ऊँट. Donkey आया, मेरे मैम ने तब मेरे को पूछा which animal is this? गधेड़ो. That's how I said, and I got selected. My teacher said ये बच्चे में बोलने की काबिलियत है. He had that confidence to speak. मेरी मम्मी शॉक कि क्या हो रहा है. So the point is it's मेरे को लगता है ये अपब्रिंगिंग तब भी हुआ था. देन व्हेन आई ड्रॉप्ड आउट आई वेंट अगेंस्ट माय एंटायर सोसाइटी, समाज, बिकॉज व्हेन यू आर अ गुड स्टूडेंट इन गुज्जू फैमिली, दैट टू राजपूत्स, व्हेन यू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 23-24, मैक्स टू मैक्स बीइंग अ बॉय. मेरी बहन की शादी 20 साल में हुई है, उसका 2 साल का बेटा है, वो 6 साल मेरे से छोटी है. सो स्टिल आफ्टर ऑल दिस गुज्जू थिंग्स आई वेंट अहेड बीइंग अ 3 times ड्रॉप आउट. सो रीजंस की वजह से मैंने एक लंबा सोचा, आज मेरे को कोई नहीं बोलता है कुछ. सो इसका जो ये रीजन है ना, मतलब वी आर ट्राइंग टू सी इन अ कंप्लीटली डिफरेंट वे, जस्ट लाइक वी सॉ दैट डिसीजन मोमेंट ऑफ माय डैड कि हाँ ये क्या डिफरेंस था. फक दोस डिफरेंसेस, बिकॉज वो पेरेंट ने भी जब बोला था वो पॉजिटिविटी बताने के लिए बोला था. मे बी वी आर जस्ट थिंकिंग इट इन अ नेगेटिव वे कि हाँ भाई ये ऐसा है वैसा है. You know, it's like me saying fuck, yeah, ये वो. If I'm saying, see, motherfucker, if we say that in India, it might be sweet, वो flow में चला गया. Mother चोद, गाली लगा. It's the same thing.
हम यूके में जाके बोलेंगे ना मदर चोद, पता भी नहीं चलेगा. इफ यू से मदर फकर, हे व्हाई आर यू सेइंग इट? It's the culture, it's how we think, it's how we see the world.